कि मुसलमान साथी भी अगर शेयर कर देना तो यकीन करें प्रोग्राम शुरू करने में देर ना हो बिल्कुल भी। हाँ जी हाँ जी लेकिन हाँ जी। पता और नहीं क्यों कादियानियों तक पहुँचाओ भाई, कादियानियों तक पहुँचाओ। और सुना है 2 बराडें कर चुके हैं ये नादर कादियानी लोग, और चैलेंज दे रहे हैं बड़े बड़े $10 लाख के हैं। ਕਿਹੜੇ ਜੇ $10 लाख? ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1 ਅਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਿਕਲੋ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਨਿਕਲੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। जी मोहम्मद साहब, सलाम अलैकुम। हेलो जनाब मोहम्मद आबिद साहब, बोलेंगे आप? नहीं यार, इंज ते ना करया करो। तुसी अगर काल नहीं करनी, कोई गल नहीं करनी, तो फिर काल पाया ही ना करो। काल करके ते बिल्कुल चौकस रहना है, रेडी रहना है फौरी तौर ते। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮौज ਮਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦਵੋ ਬਈ। ਆਓ ਬਈ, ਨਿਕਲੋ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਪਛਵਾੜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋਜਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੋਜਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੋਜਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਸ। ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ ਬਾਈ, ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਬਾਈ। अच्छा, अल्लाह मोहम्मद 4 यार भाई, आप कोई बात कहना चाहते हैं तो कह लें। बिल्कुल जी मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं आप माशाल्लाह, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं है। तो इंशाल्लाह जो है ना, ये जो गुफ्तगू है ये जारी रखें इंशाल्लाह। हाँ, आएंगे 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 आएंगे। ऐसा शेयर ऐसा तो किए हैं काफी साथियों को, अपने जो साथी हैं वो करेंगे आगे भी शेयर हाँ जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया जी। नुमान भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं तो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शाह जी। वालेकुम सलाम। मैं यार ये सोच रहा था कि तुमने $10 करोड़ का इनाम रखा हुआ है, तो ये तो मुर्दियां दे कफन भी आ देंगे ਤੇ ਜਮਦੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਟ ਮੌਜੂ ਛਿੜਿਆ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਨੋਟ ਹੀ ਨੋਟ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਜਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨੋਟ ਹੀ ਨੋਟ, ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਆ ਜਾਓ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਰਲੋ, रल के आओ, रल के आओ कादियानियों, बाहर आओ। अच्छा असद भाई, आप कोई बात कहना चाहते हैं तो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। शेख क्या हाल चाल है? ठीक जी वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम वरहमतुल्लाह। जी शाह जी, बिल्कुल। ये जो हजूर मिर्ज़ा ग़ुलाम हरीराम कादियानी साहब का निशान नंबर 85 हुआ है, अजीम निशान मोजज़ा। तो ये मरज़ई को आए इंजीनियर तपस्वी का मानने वाला कि उसका जो नाना हजूर था वो शायद यही निशान दे के तो वो ईमान लाया था। कोई दे आ जाए, वो आके दसो सानू कोई निशाना तो दे आओ, बारे मर जाओ, कोई तो आओ यार। अच्छा, नाले ना ਜਦੋਂ आओगे तो आंदे ਐ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ यार, ਖਾਕਸਾਰ ਪੈਪਰਾਮੈਂਟ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਓਏ ਹੋਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਖਾਕਸਾਰ ਪੈਪਰਾਮੈਂਟ, ਤੋਪਾ ਜਾਂ ਤੋਪਾ, ਵੱਲਾ ਵੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਓਲਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ
ਦੋਸਤਰੇ ਇੱਕ ਅਤਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਮਰ ਜਾਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗਾਸ਼ੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਜੇ। ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। शाह जी ये दोस्त ते इतर दी शीशी है की माजरे ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਕਨਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਜੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਹੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੋਲੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਆਂਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਬਚਿਆ, ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਆਓ ਬਈ, ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ। ਤਜ਼ਕਰਾ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਚੱਸ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ, ਉਰਦੂ ਵਹੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਵੱਲਾ ਪੱਟੀ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋ। ਵੱਲਾ ਵੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਓਲਾ, ਹੁਣ ਅਸਤਾਂ ਲੇਖਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜਾ ਪਈਆਂ ਏ। ਏਲੀ ਏਲੀ ਮਾਂ ਲਮਾ ਸਬਕਤਾ ਨੀ, ਅਨਮੋਇਲ ਹੋ ਸ਼ਾਨਾ ਨਾਸਾ ਪਰੇਸ਼ਨ। ਤੋਪਾ ਜਾਂ ਤੋਪਾ, ਇਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਹੀਆਂ ਜੇ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਹੀਆਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਈ, ਕਾਲ ਕਰੋ। कादियानियों आओ यार, काल करो। उस्ताद मोहतरम, जी जी। मेरे जहन में एक तरकीब आई थी, मैं इसलिए चला गया था यहाँ से। मैंने सोचा उनकी ब्रॉड पे जाके एक मैसेज लिखूं कि उस्ताद मोहतरम जनाब मुफ्ती सैयद मुबशर रजा कादरी साहब कादियानियों की मंजी ठोक रहे हैं लाइव, तमाम कादियानियों को दावत आम है। लो जी, मैंने ये मैसेज लिखा, मेरा मैसेज जैसे ही ऊपर गया उन्होंने उठा के मुझे ब्लॉक कर दिया। नवी सुन लो ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਨਾਲੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਬਲਾਕ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡਨੇ ਆ ਵੀ ਆਓ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਾਮ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਬਈ, ਇੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਣੇ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਹੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ। शाह जी ये नीचे पूछ रहे हैं कि वो पेज नंबर बता दें। ਅੱਛਾ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਲੋ ਜੀ। ਤਜ਼ਕਰਾ ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 681 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਪੱਟੀ ਪੱਟੀ ਗਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 390। ਵੱਲਾ ਵੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਓਲਾ, ਇਹ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 631। ਹੁਣ ਅਸਦਾਂ ਲੇਖਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜਾ ਪਈਆਂ ਏ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 599, ਯਾਨੀ 599। ਐਲੀ ਐਲੀ ਲਮਾ ਸਬਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 71, 79, 199 ਤੇ 509 ਤੇ 518। ਅਨਮੋਏਲ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 120,
110, ਹੋਸ਼ਾਨਾ ਨਾਸਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 80 ਤੇ 91, ਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 91, ਤੋਪਾ ਜਾਂ ਤੋਪਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 658। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਹੀਆਂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 50 ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 80। ਇਹ ਪਤਾ ਜੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਦੀ ਵਹੀ ਕਿਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਾਬਰ ਮੇਰ ਭਾਈ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇਹ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਲਾਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਸਫਾ ਨੰਬਰ 80 ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 50 ਬਈ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਈਏ ਜ਼ਰਾ। जी जनाब, अबू अहमद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर जी, सलाम। मैं कोई बहस वगैरह नहीं करना आया, मैं सिर्फ ये दसना आया वां कि पहले तो तमाम मिर्जाइयां ते लानत है और खत्म नबूवत दे डाकुआं ते भी लानत है। बस मैं अपना मुफ्ती साहब तुहानूं ये कहना है कि जदों भाई ने अगे भी गुफ्तगू मैं सुन रहा था तकरीबन घंटे तो, कोई भी बंदा आंदा ना हर सवाल का जवाब हुंदा, अगर कुछ गलत भी करदा ना तो उसका जवाब हुंदा लाजमी। तो तुसी बड़ा वड्डा काम कर रहे हो, अगर इत्थे बैठ के दीन दे बारे कोई गल कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म तुसी ओपन किया होया है। तो लेकिन ये दिल भी उन्ना ही उतर गया गाली गलोच करके। बेशक वो कोई ज़ाहिर जेह्ड़ा तुहाडे नाल आके इत्थे बह के बहस करेगा वो कोई तुहाडे जिन्ना इलम नहीं होएगा, या हो सकदा तुहाडे नाल ज़्यादा भी होएगा। तो लेकिन है कि अगर तुसी कहोगे ना मैं तेरी भैन दा रिश्ता भी लैन जावांगा तो ज़ाहिर है फिर वो गुस्से च आ जाएगा। बस मैं गुजारिश कर ਮਲੰਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। मैं देखो तुहाडे अखलाकियात ना समझाओ है वे कि तुसी ना आके अगले नूं मरज़ई साबित करना हुंदा है। तुसी अपने साहब दे स्टूडेंट हो ना, तुसी मिर्ज़ा इंजीनियर साहब दे स्टूडेंट हो ना, इंजीनियर दा फॉलोअर। तुहानूं आके जेड़ा बंदा गल सही कहंदा, तुहानूं अगर आंदी तुसी ओनू मिर्ज़ाई बना देंदे हो, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਬੂ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਐਸਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਣੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? अच्छा, पहले तो आपने जो नसीहत की थी ये उन्हों मैं सराहना वहाँ के बहुत खूब ज़बरदस्त है। एज ए ब्रदर भाईजान। हाँ जी, बड़ी अच्छी है आपने बात की थी ये। अच्छा, तस्वीर दा दूसरे रुख ते भी थोड़ी जी नज़र पा लीजिए तो उस ज़रा बात जी है ना बेहतर हो जाएगी कि दीन की तबलीग करदियां होया इंज किसी नूं कहना कि हुण मैं जिहड़ा वे उंगली ला के इंज करके खिलार छड़े है, ते जिहड़ा जदों खिलार छड़े ना हुण इहने बहना कोनी जे है। मैं हुण जिहड़ा ए तुसीं बिठाउण दी कोशिश कर रहे हो ना, ए बहना कोनी जे है। ते अबू अहमद भाई है तेरा दीन दी तबलीग दा बेहतरीन तरीका है अगर इंज करके किसी नूं समझ। बकवास से मुफ्ती साहब मैं तुहाडी गल नाल इतफाक करना, लेकिन मैं बस मैनूं की लगे वो बकवास कर रहा, उहनूं तुसीं पिंजो, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜੋ, ਫੰਡੋ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਗਾਨਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਤੋਂ ਨਾ ਯਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੈਰੀ ਔਨ ਰੱਖੋ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ।
السلام آمین جی علیکم۔ آمین جزاک اللہ وعلیکم السلام ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣੇ ਆ ਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੋਣੀ ਪਏ ਹੁਣ ਨੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਕੋਣੀ ਪਏ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਂਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਤ ਮੰਗਨੇ ਆ ਪਏ ਅਸੀਂ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੋਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਨੋਟ ਲੈ ਲਵੋ ਆ ਜਾਓ ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਬ अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब, कैसे? जी जी वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, आपसे सवाल है कि आप कहते हैं मिर्जा साहब को 10 माह का अमल हुआ, तो जी ये तो जी खोती के बच्ची को भी हो जाता है, खोती को भी होता है, तो इसमें आपको क्या मसला है? नहीं हमें मसला कोई भी नहीं है बिल्कुल हम तो यकीन माने बड़े खुश हैं और बधाइयाँ देना चाह रहे हैं कादियानियों को लेकिन वो कादियानी जो है ना वो नहीं, आप ना बताएं खुश ना, हैं आप हमसे आप क्यों कहते हैं भाई अगर खोती को हो सकता है तो मिर्जा साहब को क्यों नहीं हो सकता? आप दलील दें। नहीं नहीं हो सकता है लेकिन रोला ये है ना कि गूगल ने हमें सिर्फ ये बताया कि सिर्फ खोती को होता है तो खोती के बच्चा भी तो होता है ना। या तो ये कादियानी हमें कह देना कि भाई ये क्या इसका नाम है ये मिर्जा जी का ये भी निशान है कि भाई नहीं, वैसे तो खोती ये है तो खोती खोती का बच्चा भी तो होता है ना। आप क्या उस जी पर खो यकीन नहीं रखते? जी जी बिल्कुल खोती का बच्चा भी होता है तो फिर आप कैसे कहते हैं मिर्जा साहब नहीं हो सकते? कुत्ती का बच्चा भी होता है तो फिर वो आप फिर कैसे कह सकते हैं मिर्जा नहीं हो सकता? नहीं नहीं मिर्जा हो सकता है मैं कैसे लेकिन असल में फिर आप ये क्यों है नहीं कि मानते? ये मानते नहीं क्यों नहीं? मैं मान गया हूँ मैं मान गया जनाब सही, यकीन मनो मन गया बड़ी मैं मेहरबानी, मान मन गया जनाब चले, सही है जी। जी अच्छा जी आ जाओ भाई कादियानियों ਇਹ ਭਾਈ ਜਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਵਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਜੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਖੋਤੀ ਨੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਵੋ ਨਾ ਕੋਈ ਓਏ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਇਹ ਕੀ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਪਈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤਲਾਵਤ ਯਾਰ ਤੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 50 ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 80 ਤਜ਼ਕਰਾ ਆਈ ਐਮ ਕੋਰਲਰ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 43 ਆਈ ਐਮ ਬਾਈ ਈਸਾ ਇਹ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਬਾਈ ਈਸਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਲੈ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਜਿੰਨੂੰ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ मैं ईसा की तरफ से आया हूँ एनजी ये बाबर मेहर भाई इंजी है उस्ताद जी जी उस्ताद जी बिल्कुल ऐसे ओए ए ईसा नु खुदा समझदा रे आई है भाई ईसा सफा नंबर 51 समझ आई कि नहीं आई शैल गो यू ए लार्ज पार्टी ऑफ इस्लाम चलो नवी सुन लो ਤੇ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥਾ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 80 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 50 ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 52 ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਣੀ ਫਿਰ ਯਲਾਸ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਸੌ ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੀਲਾ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੈਲਪ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਕੁਰਬਾਨੀ 12 ਸਫੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਗੇਮ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਪ ਥੋੜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ ਹਨ ਚਸਕੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ
ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਟੁਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੁਰਿਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 14 ਫਰਵਰੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੋਚੇ ਮੋਚੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਜੀ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ? ਹੈਲੋ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਿਉਂ ਕਸ਼ਫ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ? ਤਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਕਿਸ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮਰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਨੁੱਛੋ ਬਾਂਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਉਹੀ 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 ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਰਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲੈਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਦ ਤੇ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 613 ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰਜਨ। ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਕੀ ਬੁਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹਸਨ ਗੁਜਰ ਦੱਸੇਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਸਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰਜਨ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शाह जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाह। शाह जी सर्जन ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਬੇ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈਲਪਰ। ਯਾਨੀ ਤਰੋਪੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ। ਜੀ 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 ਟਾਂਕੇ ਸ਼ਾਂਕੇ। ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰਜਨ ਜੂਨੀਅਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰਜਨ ਦੀ ਵਹੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ ਤੇ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਗੇਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਹਮਲ ਤੇ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰਜਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤਰੋਪੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 449 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਈ ਹੈ ਬਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰਜਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਨੇ लेकिन मोहतरम जी जी ये जो जितने भी पैनल पे इस वक्त बैठे हो नीचे सुन रहे हैं 47 बंदे हैं। अगर ये 47 के 47 जाके उनकी ब्रॉड पे बारी बारी ये लिखें कि मुफ्ती साहब का चैलेंज है लाइव ब्रॉड पे आ जाओ, उस्ताद जी कदा ते आएगा ना। आहो ते उसके सामने फिर ये पढ़ेंगे तो मजा आएगा उस्ताद जी। अच्छा चलो जरा थोड़ी देर रुके जे, पैरों तो मिट्टी ना छड़े आज। उस्ताद मोहतरम इजाजत है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन जी? वालेकुम अस्सलाम शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हो? वालेकुम सलाम जी। बाबर भाई जाना चाह रहे हो? नहीं उस्ताद मोहतरम गल करना चाह रहे सी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੱਟੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਾਉਂ ਹੈ। ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਵਿਆਹੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਮਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਬੁਰਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਆਂਦੇ ਪਏ। ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪੱਟੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਾਉਂ ਹੈ
ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਗਮ ਪਏ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫੌਤ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਇੰਜ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ हज़रत ਮੁਹੰਮਦੀ बेगम रहमतुल्लाहि ताला अलैह मदफून ने, वलिया खातून ਸੀ ਜਿਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹਖਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬੂਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਹੂਸ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੇ। ਚਪੇੜ ਕੀ ਲਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਵਾਲਾ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਖਾਤੂਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਲਿੱਤਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੈਸੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਆ ਬਾਂਦਰਾ ਇਹ ਆ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੁਜਰ ਭਾਈ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਅਨੀਸ਼ਤਾ ਜੀ ਕਿੰਜ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਆਂਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬਾਂਦਰਾ ਜੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੂਫੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਪੈਰ ਨਾ ਥਾਂ ਨਾ ਮੱਥਾ, ਕੁੱਤਾ ਪਹਾੜੋਂ ਲੱਥਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਐਵੇਂ ਯਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਜ਼ਾਕੁਮੁल्लाह खैर ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਦੀ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਬੁਲਬੁਲ ਚਲੇ ਕਿ ਵਕਤ ਆਇਆ। ਸਫਾ ਨੰਬਰ 193 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਵਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਬੁਲਬੁਲ ਚਲੇ ਕਿ ਵਕਤ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਰਜਨ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੂ ਸਫਾ 449 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜੇਲ ਲੋ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਵਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਅਸਕਰ ਯੂਤੀ ਵਹੀ ਇਹ ਅਸਕਰ ਯੂਤੀ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 23 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸਕਰ ਯੂਤੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਅਮੀਨੁਲ ਮਲਕ ਜੇ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਅਫਸੋਸ, ਇਹ ਵਹੀਆਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਫਸੋਸ, ਅਸੀਰ, अच्छा जी, इंतकाल, वही है जनाब इंतकाल। और ए वही बड़ी मजेदार जे, ये होगा ये होगा ये होगा और फिर इंतकाल हो गया। आहो वही है यकीन जान। सफा नंबर 258 आया है आके ना फरिश्ता टीची जरा सी वो आंदा है ये होगा ये होगा ये होगा फिर इंतकाल हो गया। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਪੀਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। आओ आओ ये होगा ये होगा ये होगा
ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਵਹੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 'ਚ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਅਸਦ ਤੂੰ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਓਏ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ। ਲੋ ਜੀ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 5 ਬਾਰ, 5 ਬਾਰ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਾਰ। ਚਾਹੇ 5 ਬਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਂਦੇ ਨੇ 5 ਵਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਸਨ ਉਹ ਸਟੈਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। 5 ਬਾਰ। ਲੋ ਜੀ ਪੈਪਰਾਮੈਂਟ, ਇਹ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਖਾਕਸਾਰ ਪੈਪਰਾਮੈਂਟ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 443। ਤਾਈ ਆਈ ਤਾਰ ਆਈ, ਇਹ ਲੋ ਨਵੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਤਾਈ ਆਈ ਤਾਰ ਆਈ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 665। ਯਾਰ ਐਸੀਆਂ ਵਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਵਹੀ ਆਈ ਹੈ ਠੂਠੀਆਂ, ਠੂਠੀਆਂ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 143। ਠੂਠੀਆਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 99। ਅੱਛਾ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੋ 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 ਜੋ। ਚਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏ ਅੰਨੀ ਦੇ ਆ ਬਚੇ ਆ। ਚਮਕਾਦੜ, ਚਲ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਚੌਂਕਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ, ਉਹ ਲੈ ਬਈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਜੇ। ਚੌਂਕਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 440 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਬਈ। ਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜੇ ਬਈ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼। ਚੌਂਕਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਹਾਦਸਾ, ਚਲੋ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ, ਰੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਡਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ। ਚਲ ਕੁਚਲਾ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਜੀ ਕੁਚਲਾ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 674। ਚੀਫ ਕੋਰਟ, ਵੱਲੇ ਬਈ ਚੀਫ ਕੋਰਟ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 10 ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਕੋਰਟ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਟੱਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ, ਤੇ ਵਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ ਖੁਦਾਈ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਖੁਦਾਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 591। ਹੋਏ ਹੋਏ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 601। ਰੂਦਰ ਗੋਪਾਲ ਸਫਾ 312। ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਸਫਾ 536। ਜ਼ਮੀਨ ਸਫਾ ਜਨਾਬ 99। ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਫਾ 600
56 ਜ਼ਮਾਨ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨ ਪਾਰਕ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਹੀ ਆਈ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਸਫਾ 656 656 ਤੇ 583 ਜ਼ਮਾਨ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਓਹੋ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਓ, ਮਰ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋਏ? ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੈ ਗਿਫਟਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਆਪ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਸ਼ਫ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ। ਕਾਸ਼ਫ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਈਆਂ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਓ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਵਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਵਈਆਂ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਉਸਤਰੇ 1 ਅਤਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ, ਇਹ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਯਾਰ? ਕਾਦੀਆਨੀਓ 2 ਉਸਤਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਨਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ? ਐ ਓਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਕੀਮ ਨੂਰੁਦੀਨ ਨਾਈ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜਰਾ, ਚੱਸ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਟੋਪੀ, ਇਹ ਵਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਟੋਪੀ, ਤੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 470, 102, 359 ਤੇ ਸਫਾ 22, ਇਹ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਟੋਪੀ, ਹੁਣ 4 ਟੋਪੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਟੋਪੀ ਸੀ ਭਾਈ? ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੱਸੇ ਜ਼ਰਾ। ਟੋਪੀ, ਟੋਪੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਈ ਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝਿਓ ਯਾਰ, ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਕਿੱਧਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ 4 ਟੋਪੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਟੋਪੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਨੇੜੇ ਲੱਗੋ। 4 ਟੋਪੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਟੋਪੀਆਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ ਵਹੀ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਈ। ਚੂਪਾ, ਚੂਪਾ, ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 415 ਤੇ 475, ਚੂਪਾ। ਠੀਕ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਸਨ ਅਸਲ 'ਚ ਚਸਕੇ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਹੀਆਂ ਵੀ ਉਂਝਦੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਹਦੀ। ਖੂਨ, ਲੋ ਜੀ ਨਵੀਂ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਖੂਨ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 202 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ, ਖੂਨ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ 16 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਵਹੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਖੂਨ।
10 रुपए। लो जी वही नादल हुई है जी मिर्ज़ा कादियानी ते 10 रुपये। सफ़ा नंबर 383 बल्कि 84 हुई 384 384 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 10 रुपए। शाह जी ये लाश ने खुश हो के मिर्जा साहब के हुस्ने कारकर्दगी पर ना उसको इनाम दिया था। वेल बहुत अच्छा वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। तमगाए हुस्ने कारकर्दगी। जी जी गाजी शाह जी ठीपे सनिया अपना बदा ही नोट सी। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ कादियानी हाजिर होने आ रहा है जवाब दे के जान। अच्छा यार जरा ना एक काशफ बराड़ ਨੂੰ जरा संभालियो मैं आ रहा हूं भाई। जी उस्ताद मुस्तफा, ये 25 अगस्त सन 1902 को ये जो पीर ऑफ गोरला शरीफ उन्होंने जब इसको मिर्जा कादियानी को का चैलेंज जो था वो कबूल किया और लाहौर गए तो ये और बद्र आ गया, बद्रुल अहमदी आ गया। हूं अरबी च दे मार 4.5 तेरा आ गई। बहुत शुक्रिया काशी, थैंक यू वेरी मच काशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। जी असद भाई। वो काशी भाई मैंने किक मार दी है, वो सुनता ही नहीं है अपनी, वो 2-4 उसने रटे लगाए हुए अरबी में, वैसे मजा नहीं आता करे बिल्कुल बिल्कुल मैंने निकाल दी। अच्छा 25 अगस्त 1900 था जी, 1902 नहीं था, 25 अगस्त 1900 था। और मिर्जा कादियानी को जब पीर ऑफ कोरला शरीफ गए मिलने के लिए तो रहमतुल्लाह अलैह जब मिलने के लिए गए इसको कादियानी को, तो कादियानी ने कहा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की कादियानी ने, ये छुप गया बेसिकली। जाहिर है उस वक्त इस तरह का तेज तरार दौर तो था नहीं कि बंदा जो है वो जिस तरह आजकल की बसें हैं एयर कंडीशन और ट्रैवलिंग जो है वो आसान हो गई है। उस वक्त जो है ट्रैवलिंग थोड़ी मुश्किल थी। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा भी बीमार हूं तो मुझे बार बात छींक भी आ जाती है और जमाई भी आ जाती है, तो मजबूरी है मेरी, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। तो ये जब ये तो चूंकि लाहौर में ही था, अब ट्रैवल करके आना था पीर साहब को, तो पीर साहब जब ट्रैवल करके पहुंचे वहां तो इसने कहा जी कि वालेकुम सलाम जी, आप जरा थोड़ा बयान कर दें। जी मैं यही बता रही हूँ, ये जो थे ना पीर साहब ने एक किताब लिखी थी इसके रद में, शम्सुल हुदाया नामी किताब थी। तो इसने ना उसमें उन्होंने दलाइल दिए हयात मसीह के, क्योंकि ये मसीह होने का दावा कर रहा था। तो बजाय इसने जवाब देने के दलाइल का, इसने उनको मुनाजरे का चैलेंज दे दिया ना, जैसे ये दिया करता था। तो आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज। जी आवाज़ आ रही है, नेट का शायद इशू है। जी जी आ रही है आवाज, आपकी साफ आ रही है। तो मुनाजरे का जब इसने चैलेंज दिया तो जो पीर साहब थे उन्होंने तो कबूल कर लिया। फिर वो 24 अगस्त को पहुंचे। 25 अगस्त 1900 में जो था वो दिन रखा था डिबेट का ना, मुनाजरे का, तो वो तो पहुंच गए 24 अगस्त को। और रास्ते में जो है उन्होंने वो जो उस ज़माने में कोई तार वगैरह भेजी जाती थी, इसको मुख्तलिफ स्टेशन पे रुक के ना बाई ट्रेन आ रहे थे, तो भेजी तार भी कि पहुंचो वहाँ पे ना मुनाजरे के लिए मिर्ज़ा कादियानी को। तो ये जो था ये घर से निकला ही नहीं, कहते कादियान में छुप गया। और पीर साहब जो है वो उल्मा भी उनके साथ थे, इंतज़ार करते रहे वहाँ। बरकत हॉल था कोई जहाँ पे ये डिबेट होनी थी, तो लोग बड़े इकट्ठे थे। फिर उन्होंने तकरीर भी की इसके ऊपर, और ये मिर्ज़ा कादियानी जो था ये छुप गया था, नहीं आया फिर ये। तो फिर उन्होंने कहा था कि पेशगोई की थी कि इसकी तो शक्ल नहीं है, ये बैठ के घर के अंदर से जो खतूत लिखता है, तो बजाय खतूत लिखने के बेहतर है कि सामने आके बात करे, ये निकलता नहीं घर से। तो फिर ये नहीं आया था। फिर उन्होंने एक पेशगोई भी की थी कि इसकी तो
इसकी शक्ल औकात नहीं है कि ये कभी मदीना जो है मदीना मुनव्वरा देख सके। तो वाकई देख लें कि उनकी जो थी बातें बिल्कुल सही थी। और फिर ये 25 अगस्त को जो है वो इंतज़ार करते रहे, मिर्ज़ा कादियानी नहीं आया था, तो इस वजह से जो है इसको कहा जाता है ये कि इसको जो है बुरी तरह शिकस्त हुई थी। अच्छा, ये जब पीर साहब वहां पहुंचे तो इसने आगे से क्या बयान दिया था कि मैं इसलिए नहीं आ रहा कि अफगानी नस्ल, कोई सिक्योरिटी गार्ड आए हुए, क्या आए हुए, वो क्या बात थी, वो जरा बताइएगा। जी जी, इसने बहाना कर दिया था कि अपने साथ जो है वो पठान लेके आए जो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, तो ये वो तो बहाना करके ये निकला ही नहीं था कादियान से। तो हालांकि उनके साथ कोई पठान नहीं थे, उलमा इकराम थे उस वक्त के, पीर साहब के साथ वही उलमा इकराम थे, तो वो उनके साथी थे और वो आए थे तो इसी का चैलेंज कबूल करके आए थे, लेकिन ये फिर चुप गया। अच्छा काशिफ भाई, ये देखे यहाँ पर भी ना मिर्ज़ा इंजीनियर की और मिर्ज़ा कादियानी की कैसी मुमासलत है। वो भी मुनाजरे करके तो फिर निकलता नहीं था, तो ये भी सारी दुनिया को चैलेंज दे तो खुद से बाहर नहीं निकल रहा। उसने तो 5 कर लिए थे, तो इसने एक भी नहीं किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मौलवी असद, मैनू लगदा है तू ना कोई पिछले एक हफ्ते तो ना मुमासलत ही लबन टुरे हैं। मुमासलत दा मतलब लबन टुरे हैं। कल भी 2 मुमासलतां लभियां ने, आज भी मुमासलत लब के आए हैं। वाह भाई मौलवी असद। लगे हैं बस कैसे हैं मुर्शद सब, है क्या ना। हाल चाल एक है? काशी साहब करें बात ये। जी काशिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका थैंक यू वेरी मच। आप उस्ताद मोहतरम को पसंद करते हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स उनको भेजते हैं, बहुत सारी लाइक्स आपकी मिलती हैं। काशी साहब जो हैं वो टॉप बैजर हैं हमारे इस ग्रुप के। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप बैजेस सेंड करते हैं। थैंक यू। नहीं ब्रो, शुक्रिया की क्या बात है। मैं एक्चुअली 3 बंदों को सुनता हूँ, एक मुफ्ती साहब को, और कल मैंने उन्हें बताया था अली नवाज और महमूद जो राशिद साहब हैं। मैं यूट्यूब पे सुनता था, आपको भी मैंने देखे। काशिफ ब्रो कैसे हैं, आपके हाल है? और सबकी सुनता रहता हूँ बातें यार। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਓ ਇਹ ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜਨਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ लाइक यार पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। और जो सारा नाज जी बता रही थी, आपने पूरा नहीं बताया कि फिर पीर मेर अली शाह साहब ने बदुआ दी थी कि भाई तू गटर में मरेगा, तो इसलिए वो फिर वहीं पे मरा था गंदगी में जब वो नहीं नहीं, वापस एक आए मिनट थे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये दोबारा रिपीट करना। क्या हुआ? ये दोबारा रिपीट करना जरा, ये वाली, ताकि ध्यान से सुन लेना, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। पीर मेर अली शाह साहब को इसने कहा कि आप मेरे साथ आके मुनाजरा करें लाहौर में, तो जब जी ये वहां नहीं पाया गया, मौजूद नहीं था, तो पीर साहब ने क्या फरमाया था? पीर साहब जब आने लगे थे तो पीर साहब ने इन्हें बदुआ दी थी कि तू गटर में मरेगा, तो इसलिए फिर ये गंदगी में मरा था जब ये मरा था। ओके। और गटर भी ऐसा कि इसको गटर तक जाने की जरूरत नहीं, गटर भी काशी भाई, इसके लिए जो गटर है ना, इसको खुद से नहीं जाना पड़ा था गटर के पास। इसकी बीवी ने गटर इसके पास लाके रख दिया था कि तू इधर ही मर जा, बिल्कुल, तुझे इसकी जाना भी चारपाई ना के पड़े। पास, एग्जैक्टली। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा कोई कादियानी आया, कोई मरदई आया यार कि नहीं आया कोई? किथे उस्ताद जी, ਤੁਸੀਂ ਡੱਕੇ ਹੀ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਲਾ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਆਓ ਯਾਰ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਵੇਖੋ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਦੀਆਨੀਓ? ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਆ ਜਾਓ। ਉਂਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਹਿਬਾਨੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੂ ਓਏ? ਓਏ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿੰਝ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਓਏ? ਦੱਸੋ ਸਹੀ।
ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਬਲੀਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ? ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਬਲੀਗ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਈ, ਕਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ जनाब, फरमाओ जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक। सर जी बहुत मज़ा आ रहा है, यकीन करें मुझे मेरे इल्म में नॉलेज में इतना इजाफा हो रहा है ना कि यकीन करें आपको बहुत दुआएं देता हूँ। इन कंजरों की मंजी ठोकने के लिए ना एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया हुआ है हमें, नहीं तो हमें पता ही नहीं था कि हम इनको जवाब क्या देना है। ये बंदे को इतना घुमाते हैं ना, उलझा देते हैं पकड़ के। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, और ऐसे ही हमारा साथ हमारा आपका साथ जो है ना हमें चाहिए सर जी, क्योंकि आप जैसा बंदा हमें नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। जज़ाकल्लाह सर। अल्लाह आप लोगों की उम्रों में भी बरकतें अता फरमाए, हमारी उम्र में भी अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अच्छा जी, ये ना अब मैं कुछ हवालाजात देने लगा हूँ और तवज्जो के साथ इन हवालाजात को आप हजरात ने मुलाहजा करना है और तस्वीरें खींच लीजिएगा, ठीक है? तस्वीरें खींच लीजिएगा। कित्थे टुर गए? ठीक हो गया। अच्छा जी, ये पहले तो ये हवाला कादियानियों की किताब है, अनवारुल उलूम, जिल्द 5 है, सफ़ा 560 है। पढ़ के सुना यार काशफ। उस्ताद मोहतरम ये स्क्रीन बहुत छोटी नजर आ रही है। अच्छा चल यार, फिर मैनू ये मुसीबत करनियां पैनियां ने। मैं असल च ना चाह पी रहा था नाल। अच्छा जी, जो किताबें एक ऐसे शख्स ने लिखी हों जिस पर फरिश्ते नाजल होते थे, इनके पढ़ने से भी मलाइका नाजल होते हैं। चुनाचे हजरत साहब की किताबें जो शख्स पढ़ेगा इस पर फरिश्ते नाजल होंगे। यानी मिर्जे कादियानी की किताबों की बात हो रही है। कादियानियों नेड़े होए मर जो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਸ਼ੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਕਿ फरिश्ते नाजल ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਵੇਖੋ ये एक खास, अच्छा मलाइका नाजल होते हैं। चुनाचे हजरत साहब की किताबें जो शख्स पढ़ेगा इस पर फरिश्ते नाजल होंगे। ये एक ख़ास नुक्ता है कि हमारे हजरत साहब की किताबें पढ़ते हुए नकात और मुआरफ खुलते हैं, और जब पढ़ो जब ही ख़ास नकात और बरक़ात का नज़ूल होता है। बराहीन अहमदिया और जब पढ़ो जब ही ख़ास नकात और बरक़ात का नज़ूल होता है। बराहीन अहमदिया हिस्सा बराहीन अहमदिया ख़ास फ़िज़ान इलाही के मातहत लिखी गई है। यार ये बात याद रखिएगा, आगे जाके ना मैंने इसका एक हवाला देना है आपको। बराहीन अहमदिया ख़ास फ़िज़ान इलाही के मातहत लिखी गई है। इसके मुतल्लक मैंने देखा है कि जब कभी मैं इसको लेकर पढ़ने के लिए बैठता हूँ 10 सफ़े भी नहीं पढ़ सका, क्योंकि इस कदर नई नई बातें और मार्फत के नुक्ते खुलने शुरू हो जाते हैं कि दिमाग इन्हीं में मशगूल हो जाता है। तो हज़रत साहब की किताबें भी ख़ास फ़िज़ान रखती हैं। इनका पढ़ना भी मलाइका से फ़िज़ान हासिल करने का ज़रिया है और इनके ज़रिए नए नए अलूम खुलते हैं। दूसरी, अगर कोई किताब पढ़ो तो इतना ही मजमून समझ में आएगा जितना अल्फाज में बयान किया गया होगा, मगर हज़रत साहब की किताबें पढ़ने से बहुत ज़्यादा मजमून खुलता है, बशर्ते के ख़ास शराइत के मातहत पढ़ी जाएं। इससे भी बढ़कर कुरान करीम का पढ़ने से मुआरफ खुलते हैं।
ਯਾਨੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਥੱਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜੇ। हदीस इससे भी बढ़कर कुरान करीम के पढ़ने से मुआरफ खुलते हैं, अगरचे इन शराइत का बताना जिनके साथ हज़रत मसीह मूतर अलैहि शलवार की कुतुब पढ़नी चाहिए इस मजमून से बेताल्लुक़ है जो मैं बयान कर रहा हूँ, मगर फिर भी एक शर्त का जिक्र कर देता हूँ। चलो यह शर्त बाद पढ़ते रहे जे। अच्छा, ये तो आपने देख लिया बराहीन अहमदिया के बारे वो कह रहा है कि ख़ास फ़िज़ान लाहिक के मातहत लिखी गई है। अच्छा, ये बराहीन अहमदिया के मुतल्लक एक ये मैं आपको सफ़ा दिखाने लगा हूँ, हवाले नोट करो ये मुंडियो, हवाले नोट करो भाई। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 5 है, सफ़ा 657 है, आईना कमालात इस्लाम, और उसमें ये इश्तहार देता है इसी किताब बराहीन अहमदिया के मुतल्लक। क्या है जनाब? किताब बराहीन अहमदिया जिसको खुदा ताला की तरफ से मुअल्लिफ ने मुल्हम व मामूर होकर बगर्ज़े इस्लाह व तजदीद दीन तलीफ किया। बराहीन अहमदिया दियां दो फजीलतां तुहाडे सामने बयान हो गई ने कि एक तो ये कि मिर्ज़ा वो अनवारुल उलूम के अंदर ये था कि जनाब ये जो है ना ये इसके अंदर बड़े मुआरफ हैं और ये कुरान की तफसीर है, और यहाँ पर मिर्ज़ा कादियानी का ये इश्तिहार है कि वो कहता है कि ये मैंने खुदा की तरफ से मामूर और मुल्हम हो के ये किताब लिखी, यानी इस किताब को अल्लाह ने मुझसे लिखवाया है, ये मैंने नहीं लिखी, अल्लाह ने मुझे लिखवाई है ये किताब। ठीक हो गया ना भाई? चलो जी, मान लेते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इसी बराहीन अहमदिया के अंदर मिर्ज़ा कादियानी क्या लिखता है वो ज़रा सुनिएगा। ये ले जनाब, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 1 है, सफ़ा 593 है, बराहीन अहमदिया हिस्सा चहारम है। इसमें वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है कि ये जो आयत है ना, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, ये आयत जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पर हज़रत मसीह के हक़ में पेश गोई है, और जिस गलबा कामला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के ज़रिए से ज़हूर में आएगा, और जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो इनके हाथ से दीन इस्लाम जमी अफाक और अख्तार में फैल जाएगा। अब आपने क्या नतीजा अखज़ किया कि मिर्ज़ा कादियानी खुद ये आयत लिख के कुरान की इससे साबित कर रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान से अपने जिस्म के साथ, यानी जिस्मानी तौर पे नाजल होंगे, और जब आप नाजल होंगे ना तो फिर इस्लाम जो है ना पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। अभी वो नाजल नहीं हुए। ये मिर्ज़ा कादियानी ये साबित कर रहा है इस आयत से साबित कर रहा है, हयाते ईसा को साबित कर रहा है हुवल्लज़ी अरसला वाली आयत से। याद कर ले भाई। और अभी बराहीन अहमदिया के बारे उसने क्या कहा था कि बराहीन अहमदिया तो मैंने खुदा से इल्हाम पा के लिखी है, इसमें मेरा अपना कमाल तो कोई है नहीं। गल कोई समझ आई है भाई? असद गुजर समझाई जरा। जी शेख, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले ये कहता है कि ये जो आपने इश्तिहार दिखाया है कि ये मुझे खुदा ने लिखवाया है, और साथ में ये भी कह रहा है वो जो आपने दूसरा चहारम का जो बताया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो जिस्म के साथ आएंगे तो इस्लाम जो है वो जमी फाग में फैल जाएगा। तो पहले ये कहता है कि भाई आगे जाके ये मलंगों को कह रहा है कि नहीं फौत हो गए, तो कुरान से साबित किया मैंने 30 आयतें, तो अभी ये खुद ही ये लिख के तो ये बता रहा है।
تو ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے خود سے نہیں، یہ اللہ نے لکھوائی ہیں مجھ سے۔ ہاں جی، یہ اللہ نے لکھوایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوئی ہے یہ کتاب مجھے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور ساتھ ہی وہ اللہ تہاڈا بھلا کرے، یہ والا اس کو بھی ساتھ رکھنا ہے نا، براہین احمدیہ خاص فیضان الہی کے ماتحت لکھی گئی ہے، اے انوار العلوم جلد پنجم صفحہ 560۔ اس حوالے نو بھی نال رکھنا ہے۔ دوجا حوالہ تساں پیش کرنا ہے اے والا روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 657، تے پھر اگلا حوالہ جڑا پیش کرنا جے او اے کرنا جے، سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ کوئی ترتیب یاد رکھو نا جی۔ اے روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 کہ براہین احمدیہ دے وچ وے کہ جناب قرآن دی آیت پیش کر کے مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دوبارہ آن دی خبر دے رہے ہیں۔ ایک اور حوالہ سن لیں، یہ بھی براہین احمدیہ کا ہے، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 601 براہین احمدیہ عیسیٰ چہارم، اس کے نیچے یہ قرآن کی آیت لکھ کے کہتا ہے خدائے تعالیٰ کا ارادہ اس بات کی طرف متوجہ ہے جو تم پر تم نے گناہ اور سرکشی کی طرف رجوع کیا تو ہم بھی سزا اور عقوبت کی طرف رجوع کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ آیت اس مقام میں حضرت مسیح کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے، یعنی اگر طریق رفق اور نرمی اور لطف احسان کو قبول نہیں کرے گی اور حق محض جو دلائل واضح اور آیت بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے، تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا، اور حضرت مسیح نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے، اور دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خشاک سے صاف کر دیں گے، اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا، اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنی تجلی قہر سے نیست و نابود کر دے گا۔ براہین احمدیہ حصہ چہارم، یہ وہی کتاب ہے کہ جس کے بارے مرزا قادیانی نے اپنے الہامات دیے اور کہا کہ یہ الہامات کا مجموعہ ہے، یہ خدا کی طرف سے میں نے یہ لکھی ہے، یہ خود نہیں لکھی۔ ہن قادیانیوں فیصلہ تواڈے اُتے اسی چھڈیا کہ تسی کردے کی ہو، ویسے کوئی توقع تے نہیں ہے تواڈے کولوں خیر دی، تے اچھا سارا ناز آپ اس کے اوپر کیا کہتی ہیں، تھوڑی سی گفتگو کریں۔ میں انہاں تے کرنا چاہ پی لواں تے تسی سارے گل کرو۔ ہاں جی جی استاد محترم، بالکل پہلے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے کتاب لکھوائی ہے، اور اس میں خود آیات قرآنی لکھ کے اقرار کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور جسمانی طور پہ ہوگا، اور وہ جو ہے دنیا میں ان کی فتح ہوگی۔ پہلے وہ یہ عقیدہ لکھتا رہا ہے، اور ایک اس کی کتاب تھی حمامت البشرا میں کہہ رہا ہے کہ میرا خدا جو ہے مجھے 1 سیکنڈ کی بھی غلطی پہ نہیں رہنے دیتا ہے۔ تو پھر یہ اتنی جو پہلے باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ معمور ہو کے میں نے لکھی ہیں خدا کی مرضی سے۔ تو قادیانی جو ہے یہاں پہ اس چیز کا جواب بالکل دیتے ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے جو ہے اس نے جو لکھا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے خدا کی مرضی سے معمور ہو کے یہ کتاب لکھی ہے، تو اس میں پھر وہ غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر یہ غلط لکھا تھا تو پھر یہ تو ڈائریکٹ خدا پہ اعتراض جاتا ہے کہ غلط چیزیں لکھوائی ہیں۔ تو اب دونوں کو جو ہے ڈیفینڈ نہ مرزا قادیانی کو کر سکتے ہیں، نہ اس کے لکھی ہوئی یہ تحریروں کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ کہتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور آیات قرآنی اور حدیثوں کے بارے میں بھی اس نے کہا تھا کہ وہ اول درجے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ جو نزول مسیح پہ ہے وہ بھی اس نے کہا تھا کہ اول درجے کی پیش گوئی ہے، اور جو ان پہ یقین نہیں رکھتا اس کے ایمان میں جو ہے وہ اس طرح کی اس کی تحریر تھی کہ خرابی ہے۔ تو پہلے تو وہ یہ بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ عقیدہ مان رہا تھا کہ زندہ ہے اور ان کا نزول ہوگا۔ پھر بعد میں جو ہے اس نے یو ٹرن لیا اور پلٹی کھائی، اور پھر بالکل ہی اپوزٹ شروع کر دیا جب اس نے خود جو ہے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔
तो फिर और कोई रास्ता नहीं नज़र आया तो हदीसों को जो है उनके अंदर तावीलात शुरू की कुरान पाक की आयत के अंदर। लेकिन ये दोनों चीज़ें मिर्ज़ा कादियानी की तहरीरों में देखें मिलती हैं और लिखी हुई हैं, और कादियानी तो अब कोई है नहीं जो आके बताए कि कौन सी वाली तहरीर को माना जाए, पहली वाली को या बाद वाली को। बिल्कुल ये ठीक हो चीज़ गया, कादियानियों को खुद भी नहीं पता। बिल्कुल ठीक हो गया। उस्ताद मोहतरम, जी जी पहला गैर सरकारी नतीजा हासिल हो गया है आपकी आज की इस स्ट्रीम का। जी हकीम राशिद बमा अपने एक और साथी के आ चुका हुआ है और नीचे उल्टे सीधे मैसेजेस किए जा रहा है। बहरहाल वो 2 आ चुके हुए हैं और आपके जो हवाला जाते हैं वो गौर से सुन रहे हैं बैठ के नीचे। अच्छा जी जी जी, नहीं सुने बैठ के, कोई बात नहीं। कीम साहब, दिलों को मोड़ने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, तो तवज्जो से सुने। हवाला गलत हो तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। हकीम राशिद साहब, आप तो लड़ाइयाँ करते हैं, गालियाँ निकालते हैं हमें, लेकिन आप सुना करें हमारी बातों को, तवज्जो से सुना करें। इंशाल्लाह कभी ना कभी आप मिर्ज़ा कादियानी पे लानत डाल ही देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, चंदा सिस्टर आई हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हाँ जी, बात कर लीजिए भैया। जी जी, उस्ताद मोहतरम कह रहे थे कि जो मौजू अभी उस्ताद मोहतरम ने छेड़ा है तो उसके ऊपर भाई सारे क्या कहते हैं, सारे अपने कमेंट्स क्या कहते हैं, तो मैं भी कुछ हवाला जात या कुछ बात करना चाह रहा था। शाह जी, उस्ताद मोहतरम, ये ब्राइन अहमदिया सफ़ा 23 जिल्द 1 23 और 24 में खुद कहता है कि अम्मा बाद सब तालिबान हक पर वाज़े हो, जो मकसूद इस किताब की तारीफ से जो मौसूम है ये है कि जो दीन इस्लाम की सच्चाई के दलाइल और कुरान मजीद की हकीकत के बराहीन और हज़रत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्क़े रसालत के वजूहात सब, और नीज़ इन सब को जो इस दीन मतीन और मुकद्दस किताब और जो आइंदा इनको बामुकाबला इस्लाम के दम मारने की जगह बाकी ना रहे। कहता है इस्लाम, ये जो मैंने ब्राइन अहमदिया लिखी है ना, इसकी असल वजह ये है कि इस्लाम की सच्चाई बताई जाए, कुरान की हकीकत बताई जाए, खातमुल अंबिया की सिद्क़े रसालत बताई जाए, और इन पर वाज़िया किया जाए कि मुकद्दस किताब, और इन पर वाज़िया किया जाए कि जितने भी इस्लाम के मुकाबले में आ रहे हैं लोग, इनको दम मारने की जगह न रहे। फिर उसके बाद ये मिर्ज़ा कादियानी ब्राइन अहमदिया के बारे में दावा करता है कि जिस तौर, ये सफ़ा 88 है इसी जिल्द का 1 का, कि जिस तौर का इसकी निस्बत कोई दावा किया है वो सब दलाइल वगैरह इसी मुकद्दस किताब से माखूज हैं। कहता है जो मैंने ब्राइन अहमदिया लिखी है वो सब के सब जो दलाइल उसमें दिए गए हैं वो इसी कुरान मुकद्दस किताब से माखूज और मुस्तंबत हैं, यानी दावा भी वही लिखा है जो किताब ममदू ने किया है, और दलील भी वही लिखी है जो इसी किताब पाक ने उसकी तरफ इशारा फरमाया है। ना हमने फ़कत अपने ही क्यास से कोई दलील लिखी है, ना कोई दावा किया है। फिर उसके बाद कहता है कि इस किताब का फ़ायदा ये भी है कि ये किताब 300 महकम दलाइल और कवी दलाइल हकीकत इस्लाम और रसूल इस्लाम पर मुश्तमिल है, जिनके देखने से सदाकत और दीन मतयन की हर एक तालिब हक पर ज़ाहिर होगी, बजुज़ उस शख्स के कि बिल्कुल अंधा और तासुब की सख्त तारीकी में मुब्तला रहे। फिर आगे सफ़ा 599 पर 599 पर लिखता है कि ये किताब मुझको दी गई जिसकी निस्बत ये बतलाया गया ये तफसीर कुरान है जिसको मौला अली ने तालीफ किया है, और अब अली वो तफसीर तुझको देता है। और फिर आगे उसने वो इल्हाम लिखा है कि फिर इसके बाद ये इल्हाम हुआ, वो इल्हाम पूरा पढ़ के कहता है कि ये मौला अली की तारीफ है। फिर इसने वही शाह जी के पूरा वाक़या लिखा कि मुझे वो फल दिया गया, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस किताब की तारीफ़ात की, और इस तारीफ़ात को लेकर मैं कहता हूँ, कहता है दावा करता है कि ये किताब जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो कबूल की है, उसको खुद जो है कबूल करके मुझे दी है। फिर कहता है कि मुझको इस घर से दी गई ताकि मैं शख्स को दूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कह रहा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं कि मुझे इस शख्स को दूं जो नए सिरे से जिंदा हुआ और बाकी तमाम काशें मेरे दामन में डाल दी, एक काश मैंने इस नए जिंदा को दे दी, उसने वही खा ली। फिर जब वो नया जिंदा
अपनी काश खा चुका तो मैंने देखा आ हजरत की कुर्सी मुबारक अपने पहले मकान से बहुत ऊंची हो गई। जब ये किताब कहता है मुझे दी गई है ना, तो आ हजरत की कुर्सी बहुत ऊंची हो गई, जैसे आफताब की किरणें छूटती हैं, ऐसा ही आ हजरत की पेशानी मुबारक से मतवातर चमकने लगी। फिर इसके ऊपर मिर्ज़ा कादियानी ने इजमा भी इसके ऊपर नकल किया है। इजमा के बारे में कहता है मिर्ज़ा कादियानी इस किताब के बारे में कहता है, मैं वो आपको पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। कहता है कि तमाम अमूर, यही किताब आगे किताब में जिल्द 14 में कहता है कि तमाम अमूर जिन पर सलफ सालेह को एतकादी और अमली तौर पर इजमा था, वो अमूर जो अहले सुन्नत की इजमाई राय से इस्लाम कहलाते हैं, उन सब का मानना फ़र्ज़ है। कहता है इजमा का मानना फ़र्ज़ है, और हम आसमान और ज़मीन को इस बात पर गवारा करते हैं कि यही हमारा मज़हब है। जो शख्स मुखालफ इस मज़हब के कोई और इल्ज़ाम हम पर लगाता है, वो तकवा और दयानत को छोड़कर हम पर इफ्तरा करता है। तो अब उसी किताब की तरफ आते हैं जिसमें ये कहता है कि ये इजमाई अकीदा है, ये इजमाई अकीदा है। कहता है कि तमाम मुसलमानों का इस बात पर इत्तफाक है कि अहदीस की रूह से ज़रूर एक शख्स आने वाला है जिसका नाम ईसा इब्ने मरियम होगा। ये पेशन गोई बुखारी और मुस्लिम, तिरमिज़ी वगैरह कुतुब हदीस में है। इस कसरत से पाई जाती है कि जो कि एक मुनसफ मिजाज की तसल्ली के लिए काफ़ी है। इसमें खुद लिख रहा है कि तमाम मुसलमानों का इस पर इत्तफाक है। अब ये वो कह रहा है इजमा को भी मानना है, और फिर कह भी रहा है कि तमाम मुसलमानों को, जब मुसलमानों का इत्तफाक होता है तो उसी को इजमा कहते हैं। इजमा में भी उसने नकल किया ईसा इब्ने मरियम आने वाले हैं। जी शाह जी। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अब ये तुमने इतनी स्पीड से ये हवालाजात दिए हैं कि कादियानी हैं, मुसलमानों के सरों से भी गुजर गए होंगे, क्योंकि ये हवालाजात होते हैं कीमती। तो ये ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता ये इबारतें भी पढ़ी जाती हैं और दलाइल दिए जाते। इसमें ये होता है कि सुनने देखने वाले उसके ऊपर तवज्जो देते हैं, और ये चूँकि ये बीच में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सीख रहे हैं ना, तो बहरहाल मैं कहूँगा तुम्हें कि एक दफ़ा दोबारा ये सारी इबारतें पढ़ो, लेकिन हवाले जो है ना, हवाले को 2-3 दफ़ा रिपीट किया करो कि जिल्द फ़लाँ, सफ़ा फ़लाँ, किताब फ़लाँ, ठीक है। उसके अंदर ये चीज़ साबित होती है, ठीक है। पहले तो नतीजा अखज़ करके बता दो, फिर इबारत पढ़ो। ये है तरीक़ाकार, और इसमें ये होता है कि काम बड़ा मजबूत हो जाता है कि मैं अब ये जो इबारत पढ़ने, मैं जब भी बयान करता हूँ, आप लोगों ने गौर किया होगा, मेरा तरीका यही है ना। मैं पहले हवाला देता हूँ, हवाला देने के बाद कहता हूँ कि देखें जी, अब मैं हवाला इस चीज़ के ऊपर देने लगा हूँ, ताकि सुनने देखने वाले मुतवज्जे हो जाएं कि अच्छा ये अब फ़लाँ चीज़ को ये साबित करेगा, ठीक है ना। ये एक तरीक़ाकार होता है। तो ये हवाले बड़े कीमती हैं, इनको आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दोबारा देंगे और ठहर ठहर के पढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और हवालों को आप एक दफ़ा इबारत पढ़ने से पहले आप हवाला सुनाएंगे, एक मरतबा इबारत के इख्तिताम पर हवाला सुनाएंगे कि ये जो मैंने इबारत पढ़ी है इसका हवाला ये था। चलें दोबारा शुरू हो जाएं। जी उस्ताद मोहतरम, जी उस्ताद मोहतरम, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19, जैसे कि उस्ताद मोहतरम का मुनाजरा हुआ मीर सलीम माइन रोस्टर के साथ कि जब कोई बंदा आता है वो अपने पहले अकीदे से मुनहरिफ होता है तो फिर वो मुतई होता है। तो इसी के हवाले के ऊपर कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो पहले हयात मानता रहा और बाद में उसने कहा कि नहीं, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफ़ात पा गए। उसके ऊपर एक हवाला ले लें, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 140। कहते हैं साहिब मन जान लो, इकरार के बाद कोई काजी इनकार नहीं सुन सकता। इकरार के बाद कोई काजी इनकार नहीं सुन सकता। ये हवाला अपने जहन में नोट कर लेना है। और फिर क्योंकि इसने इकरार किया है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सफ़ा क्या है जी? 140 सादे मोहतरम, 140 सफ़ा 19 सफ़ा 140, जिल्द 19 सफ़ा 140 19 140, ठीक है जी। हिस्सा कौन सा है मुफ्ती साहब ये 140 का? पहला हिस्सा होगा या दूसरा या तीसरा? हाँ भाई, हवाले दे वो ना, सही दसो सारा।
देखें क्योंकि शाजी ये अगर जो तो नए इन्होंने इनकी वेबसाइट से मिलते नहीं है ना मुफ्ती हिस्सा साहब, वो हिस्से हैं उनके। नहीं नहीं, आप कंप्लीट आप जब गूगल पे लिखोगे ना रूहानी खजाइन जिल्द 19, उसका कंप्लीट वॉल्यूम जो है 19वां, उसमें जितनी भी किताबें हैं वो सारी की सारी शामिल होंगी। पूरा 19 का 19 जो है ना वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप उसमें अलग-अलग से किताबों में जाओगे ना तो ये जो मैं सफ़ा दे रहा हूँ ये गड़बड़ हो जाएगी। उधर सफ़ा जिल्द 19 सफ़ा 140 इसमें क्या हवाला है? उसमें ये कह रहा है कि साहिब मन ये जान लो कि इकरार के बाद कोई काजी इनकार नहीं सुन सकता। बस ठीक जी, आगे जी। अब शाहजी मैं सबसे पहले वो इजमाए उम्मत के बारे में थोड़ा बता दूं कि मिर्जा कादियानी अब ये देखो जिस तरीके से तुमने एक लाइन और एक सतर के अंदर पूरे सफ़े का नतीजा बता दिया ना, ऐसे ही इबारतें चूंकि इसकी लंबी लंबी होती हैं तो एक सतर के अंदर पूरी उसका बता दें लुबे लुबाब के इसके अंदर ये चीज़, इस तो वजह से ये मैं हवाला पढ़ने लगा हूँ। ये है तरीका। जी जी उस्ताद मोहतरम चुका है कि मैं उसको हयात वो लिख चुका है, ईसा अलैहिस्सलाम को हयात वो मान चुका है। तो अब उसी के ऊपर फतवा है कि साहिब मन ये जान लो इकरार के बाद कोई काजी इनकार नहीं सुन सकता। तो ये उसके ऊपर हवाला है कि अगर एक जगह पे वो ईसा अलैहिस्सलाम की इल्हाम पाकर अल्लाह से कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ही दोबारा तशरीफ लाएंगे और वही दोबारा दुनिया में आएंगे और जमी आफाक पर इस्लाम फैल जाएगा, तो इकरार के बाद कोई काजी कोई भी बंदा इनकार नहीं फिर सुन सकता। ये उसका दावा है मिर्जा कादियानी का खुद का। जी ठीक है जी। तो मैं फिर आगे ब्राहीन अहमदिया के बारे में बता रहा था कि जिसमें इसने उस्ताद मोहतरम इकरार किया कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ लाएंगे। अब ब्राहीन अहमदिया मिर्जा कादियानी की नज़र में क्या है, ये मैंने इसका टाइटल दिया है कि मिर्जा कादियानी की नज़र में ब्राहीन अहमदिया क्या है। तो उसके ऊपर मैंने हवाला दिया था रूहानी खजाइन जिल्द 1 है, सफ़ा 23 और 24, सफ़ा 23 और 24 रूहानी खजाइन जिल्द 1। उसमें ये कहता है कि अम्मा बाद सब तालिबान हक पर ये वाज़िया हो जो मकसूद इस किताब की तालीफ से मासूम है, कि जो इस किताब का लिखने का मकसद है ना, वो कहता है ये मकसद है कि जो दीन इस्लाम की सच्चाई के दलाइल हैं, कुरान मजीद की हकीकत के बराहीन हैं और हज़रत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्क़े रसालत के वजूहात हैं, सब लोगों पर बावजाहत हम तमाम ज़ाहिर किए जाएं और नीज़ इन सब को जो इस दीन मुतय्यन और मुक़द्दस किताब और जो आइंदा इनको बामुकाबला इस्लाम के दम मारने की जगह बाकी ना रहे। इस किताब के लिखने की वजह वो बयान कर रहा है, जहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी कहता है किस किताब की तारीफ करने की वजह ये है कि दीन इस्लाम की सच्चाई ज़ाहिर हो, कुरान मजीद की हकीकत ज़ाहिर हो और हज़रत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्क़े रसालत के वजूहात ज़ाहिर हों और तमाम लोगों पर यह ज़ाहिर हो जाए कि आइंदा जो जितने भी इस्लाम के मुकाबले में आने वाले हैं उनको दम मारने की जगह बाकी ना रहे। ये ब्राहीन अहमदिया मिर्ज़ा कादियानी की नज़र में ठीक हो गया। मतलब ये कि ब्राहीन अहमदिया जो लिखी गई है ये दीन इस्लाम की हकानियत को ज़ाहिर करने के लिए लिखी गई है। जी उस्ताद मोहतरम, मतलब ये कि इस हवाले के अंदर ये है रूहानी खजाइन जिल्द 1 सफ़ा 23 और 24 का खुलासा ये है कि ब्राहीन अहमदिया दीन इस्लाम की हकानियत को ज़ाहिर करने के लिए लिखी गई है। ठीक हो गया ना जी। तो अब यकीनी सी बात है कि इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब दीन इस्लाम की हकानियत को ज़ाहिर करने के लिए है। और इसी ब्राहीन अहमदिया के अंदर मैंने अभी हवाले दिए रूहानी खजाइन जिल्द 1 सफ़ा 601 और 602 का हवाला और जिल्द 1 सफ़ा 593 का हवाला, कि जिससे ये साबित होता है कि कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के मिर्ज़ा कादियानी ब्राहीन अहमदिया में ये चीज़ साबित कर रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा अभी दुनिया में आएंगे, ज़िंदा आसमान से नज़ूल करेंगे और जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो दीन इस्लाम जमी आलम के अंदर फैल जाएगा।
اور کفر کا نامو نشان بھی نہ رہے گا. یہ خود مرزا قادیانی نے یہ ثابت کیا ہے. السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم. جی بالکل. جی اگلا حوالہ استاد محترم دوبارہ حوالہ دے رہا ہوں کہ مرزا قادیانی کی نظر میں برائن احمدیہ کیا ہے. وہ کہتا ہے میں آ رہا ہوں, آپ گفتگو جاری رکھیں. شاہ جی اس کے اوپر میں تھوڑی سی اپنی وضاحت کروں, تھوڑا سا روشنی ڈالوں. بالکل. ساحل کاہلو بھائی بھی آ گئے ہیں, ساحل کاہلو بھائی بھی ساتھ کریں گے, اور میں ابھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر تک. میرے خیال میں چندہ سسٹر کو پہلے لے لیں, اس کے بعد پھر باقی ساتھی بات کرتے رہیں. چندہ سسٹر کافی دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں. جی کریں. السلام علیکم سب معزز سننے والے کو, سب کو بہت اچھی بات. اور آج تو کمال, کچھ حوالے تو میرے سے مس تھے جو میں نے نوٹ کیے. تو ایک بات کہوں گی کہ احمدیوں کے, قادیانیوں کے علاوہ یہودی, بہائی اور منکرین حدیث بھی ہیں جو حیات مسیح اور وفات مسیح کے قائل نہیں ہیں, لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلب نہیں مانتے, ان کا رفع آسمان کی طرف, اور نہ ہی نزول مسیح کا وہ رکھتے ہیں ایمان, لیکن وہ مرزا قادیانی کو بھی ہرگز نہیں مانتے. ایک بات. تو دوسری بات یہ کہ یہ ہر قادیانی کا من پسند ایک موضوع ہے, ٹاپک ہے, جس کو یہ ضرور اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں, جہاں پہ مطلب وہ روزی روٹی کے ہل چلانے میں, کاشتکاری میں, گندم اگانے میں, چاول اگانے میں مصروف ہوتے ہیں. جب وہاں پہ جا کے یہ قرآن پاک پکڑ کے ان سے اس قسم کی بحث کرتے ہیں, تو لازمی بات ہے کہ لوگوں کو تھوڑا بہت اثر ہوتا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ایک ماڈرن بات ہے کہ کیسے ہو گیا, رفع کیسے ہو گیا. تو اچھا, ایک لمحے کے لیے میں سوچتی ہوں کہ ان کی بات کو مان بھی لیا جائے کہ ٹھیک ہے, آپ رفع عیسیٰ پہ مت ایمان لائیے, جو آپ کا ایمان ہے اسی پہ رہیے. تو پھر آگے چل کے مرزا قادیانی کو کیسے وہ مسیح ثابت کرنا ہے, اس کے بھی تو صادق امین اور سچے ہونے پہ غور کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ پھر آگے چل کے کیسے اس پہ ایمان کیسے لانا ہے, کہ چلو ان کو وہ نہیں ہے تو چلو ان کو کیسے ماننا ہے, یہ بھی ایک مشکل پروسیجر ہے. تو بڑی ہی پیاری بات کی. لیکن مرزا قادیانی نے خود کہا ہے کہ حقیقت الوحی ہے, روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 32, اور مسیح موعود کے ظہور سے پہلے اگر امت میں کسی نے یہ خیال بھی کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے, تو ان پر کوئی گناہ نہیں, صرف اجتہادی خطا ہے جو اسرائیلی نبیوں میں سے بعض پیشگوئیوں کو سمجھنے میں ہوتی رہی ہے. اور پھر آگے ملفوظات ہے اس کی, جلد 1 صفحہ 352 ملفوظات کا یہ جلد ہے نمبر 1. ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ مسیح کی وفات اور حیات پر جھگڑتے اور مباحثہ کرتے پھریں, یہ ادنا سی بات ہے. تو قادیانی کیسے, جن کا مطلب کیا کہتے ہیں لیڈر خود کہہ رہا ہے کہ یہ ادنا سی بات ہے کہ مسیح کی ہم حیات پہ یا وفات پہ لڑتے پھریں, تو خود کہہ رہا ہے, تو یہ کس طرح اتنی زیادہ بحث, مطلب 8 دن کے مناظرے کرتے ہیں, پھر جوتیاں کھاتے ہیں, پھر بھاگتے ہیں. کیا یہ مطلب کیوں نہیں کتابیں کو غور سے پڑھتے؟ اور جیسے مرزا قادیانی نے خود کہا ہے کہ رفع جسمانی بصورت مراج نبوی اور رفع جسمانی مسیح دونوں ایک ہی نوعیت کے امور ہیں.
यानी कि मराज नबवी अगर सबको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है मराज की रात, सबको पता है, और रफ़ा जिस्मानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, ये दोनों एक ही नोयत के अमूर हैं। अब इनकी बात सुन लीजिए। तो जैसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर असहाब मराज जिस्मानी के कायल नहीं थे, मगर इस पर फतवा कुफर नहीं, ऐसे ही रफ़ा जिस्मानी मसीह का इनकार भी कुफर नहीं होगा। यानी कि ये खुद कह रहा है, रूहानी खजाइन जिल्द 3 सफ़ा 248, अजाला ओहाम, शायद आपने कहा भी होगा। तो ये जब ये मसला ही कोई नहीं है, मिर्जा कादियानी कह रहा है कि ये जुज़ ही नहीं है ईमान का, तो फिर इस पे बहस कैसी इन लोगों से समझ से बाहर है। मैंने खुद देखा है अपने वालिद मोहतरम की मतलब इंसल्ट होते हुए बहुत बड़े बड़े मुनाजरों में बेइज्जत होते देखा है अपने ख़ानदान के लोगों को। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, अगर किताबों का मिर्ज़ा कादियानी की ही जायज़ा ले लें तो उसने कहा है कि ये मसला ही कोई नहीं है जिस पे बहस की जाए, ये ईमान का जुज़ ही नहीं है, और अंदर ही उसने मराज नबवी को भी रगड़ मगड़ दिया है। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और ये नीचे जो हकीम साहब थे, पता नहीं ये किस कौन सी पक्की बनाते हैं जो खुद इस्तेमाल नहीं करते। सुबह इन्होंने, मैं एक लाइव पे थोड़ी देर गई थी हवाला देने के लिए, तो इन्होंने इस कदर बुरी लाइव पे आके आते ही मुझे चोलियां चुक चुक के बददुआएं देनी शुरू कर दी। तो आप अपना मजाज थोड़ा मिर्जा कादियानी से डिफरेंट रखिए। अल्लाह ताला आपको हदायत के दरवाजे खोले। ज़िंदगी कितनी देर है, अगर आपके पास यूरोप की नेशनैलिटी है तो अगली जो जहन्नम की नेशनैलिटी है उसके बारे में फ़िक्र कीजिए। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, बात करिए। ठीक है, सिर्फ ये बताता चलूं कि कर रहे थे, भीख मांग रहे थे कि मेरा अगले महीने जो है वो हार्ट का ऑपरेशन है, तो मेरे लिए जिंदगी की दुआ करें। ये वो साहब है। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे भी कोई बुजुर्ग आदमी लग रहे थे मुझे, लेकिन सुबह काशिफ भाई इन्होंने इस कदर ऐसी कुछ दी कि जुम्मे का दिन है, सूरह कहफ मेरे हाथ में थी और मैंने कहा सूरह कहफ तो दज्जालों से बचाती है, तो ये मेरे मत्थे किधर से लग गया और ऐसे झोलियां उठा के कह रहा था। तो पता नहीं क्या लफ्ज, और एक लफ्ज मुझे याद रह गया, कहते कि तेरे बच्चा ही नहीं होना, तो पांच ही रहना है। पांच। तो देखिए, अल्लाह माफ करे, मैं साहिब औलाद हूँ, मैं कादियानियत से निकल के मैंने जिस चीज को हाथ लगाया रब ने सोना बना दिया। इन्होंने कहा था भूखी मर जाऊंगी क्योंकि मैं कादियानियों के मतलब ड्रेस डिजाइनर थी इनकी, तो वाकई एक रोजी रोटी के मसले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बेल्जियम की अदालत में मतलब सेशन कोर्ट में बतौर जज में अब काम कर रही हूँ। तो बात करने का मकसद है कि थोड़ा बददुआ देने से पहले हिस्ट्री पूछ लिया करें कि मैं साहिब औलाद हूँ, और ये क्या तरीका है पांच, ये तो औरतों वाली बददुआएं हैं ना, गायनाकोलॉजिस्ट वाले मसले हैं। माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, अगर कोई कादियानी आपको दुआ देता है ना तो उसमें आप सॉरी बददुआ देता है, आप उसका ऑपोजिट सोचा करें, क्योंकि मिर्जा कादियानी भी ना लोगों को बददुआएं देता था, होता उससे उल्टा ही था। वो अब्दुल्ला आसम को उसने कितनी कितनी बददुआएं निकाली थी और उल्टा उसके सर पे पड़ गई थी। तो इसको उसमें लिया करें, अगर ये बददुआएं दें तो समझ जाया करें इसके ऑपोजिट अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए अच्छा फरमा देगा। चलें, सूरह कहफ आप तिलावत कर रही थी, अल्लाह ताला ने आपको दज्जाल दिखाया तो सही एक इंसानी शक्ल में, लेकिन उसके शर से महफूज रखा अल्लाह पाक ने। जी उस्मान भाई, अब आप अपना हवाला प्लीज शुरू कीजिएगा और कालू भाई के साथ। साहिल कालू भाई बात करना चाहते हैं। मैं म्यूट करती हूँ, कालू भाई आप बात कीजिए। और एक मैं बड़ा ही मुखलिसाना मशवरा दूंगी, जुम्मे का दिन है और आज है भी अगस्त का महीना, और आज वो दिन है जब पीर मीर अली शाह ने इस कादियानी दज्जाल को चैलेंज करके ललकारा था लाहौर में। और दूसरा ये कि एक बात मैं कहूँगी कि हर कादियानी अगर जुम्मे के रोज़
2 महीने या 3 महीने सूरह कहफ की तिलावत कर ले तर्जुमे के साथ, या अगर नहीं कर सकता तो लगा के सुन ले उसको हेडफोन में, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद रहनुमाई उसके दिल में डालेंगे। और ये एक मुजर्रब अमल है जिस पे अमल करके बहुत सारे कादियानी जो हैं इस कल्ट से निकलने में कामयाब हुए हैं। तो आप सूरह कहफ को ये सोच के कि या खुदा मुझे तो कुछ भी नहीं पता, सब कुछ सारी खबर आपको है, आप मतलब गैब का इल्म रखने वाले हैं, तो इनको हिदायत ज़रूर मिलेगी। और अगर 2-3 महीने लाजमी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें सूरह कहफ को, तो इंशाअल्लाह इनको भी इस कर्ज से निकलने का रास्ता ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया। मलफूजात का हवाला लिखा दे मुझे। जी उस्मान भाई आप लीजिएगा स्ट्रीम को। जी साहिल कालू भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मिर्ज़ा कादियानी ने ये जो हयात ईसा के ऊपर लिखा और फिर बड़े बड़े उसके ऊपर दावाजात किए, फिर बाद में ये मुकर गया ये सारे उसके ऊपर। घोंसले हैं इनके, दावाजात कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है कि जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने जो अपनी पहली किताब लिखी थी ना बराइन अहमदिया, वो किस लिए लिखी थी? दुश्मनों इस्लाम के, दुश्मनों ईसाइयों यहूदियों सबको जवाब देने के लिए। और इस किताब को लिखा था उसने जी, मैं ममूर में अल्लाह होकर लिख रहा हूँ ये किताब। और ये किताब जो है ये तफसीर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसने इस किताब की तईद की है। उस किताब के अंदर मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी ने खुद से हयात मसीह नहीं साबित की, उसने कुरान करीम की आयत से हयात मसीह साबित किया है। ठीक है, अब एक तरफ ब्राहीन अहमदिया के अंदर जो है वो हयात मसीह कुरान की आयत से हो रही है, और ममूर मन अल्लाह होके हो रही है, मुल्हम होके हो रही है, यानी जिसके साथ अल्लाह ताला की ताईद होती है। फिर दूसरी तरफ जी वही कहता है जी कुरान से जो है ना वो वफात मसीह है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि पहला सही था या अब सही है? तो वो मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं जी वो मिर्ज़ा साहब को ना वही और इल्हाम से पता चला था कि वफात मसीह का। तो बात ये कि असल मकसद ये कुरान करीम तो सिर्फ उनका अंदर जो है ना वो बहाने बनाने के लिए है, बात को लंबा खींचने के लिए है कि किसी तरीके से जो है ना मिर्ज़ा साहब के ऊपर बात ना है। याते वफात मसीह का तो मसला ही कोई नहीं है। जैसे ये सिस्टर ने बताया कि ये कोई शय ही कोई नहीं है कि ये मतलब कि इसके ऊपर बहस की जाए इनके साथ। ये तो इन्होंने बस तवीलें करनी है, किसी माने अरबी मतलब लफ्ज़ का कोई मतलब निकालना है, कभी किसी को इसका कोई लफ्ज़ का माना निकालना है, तो ये खींचते चले जाएंगे। असल बात है कि मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर जिसकी बिना के ऊपर उसने ये कहा कि जी मुझे अब ये राज जो है ना ये सदियों से किसी को नहीं पता चला, ये सिर्फ मुझ पे अफशा हुआ है कि जी मिर्ज़ा वफात मसीह हो चुकी है। तो जो वही है, जो इसका इल्हाम है, उसके ऊपर बात की जाए तो मेरे नहीं ख्याल कि कोई कादियानी भी एक भी इसका इल्हाम, एक भी वही इसका जो है ना वो उसके ऊपर बात करके कह सकेगा जी हाँ मिर्ज़ा गुलाम कादियानी नबी तो बात की बात के एक सच्चा इंसान भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने पहले बराहीन अहमदिया में कुरान से ही हयात मसीह साबित की, बाद में कुरान से ही कहता है जी वफात मसीह है, तो इसकी कोई एक ज़बान नहीं है। तो कभी ये जैसे ऊपर सिस्टर ने बताया कि ये अपनी किताब वहाँ में कहता है कि ये कुफर का मसला नहीं है, लेकिन खुद ये कहता है कि ये मुशरकाना अकीदा है हयात मसीह मानना। तो एक तरफ कहता है कुफर का मसला नहीं है, दूसरी तरफ कहता है ये मुशरकाना अकीदा है, तो इसके एक ज़बान नहीं है, तो इसके ऐसे बंदे के ऊपर इतबार बनता ही नहीं है। तो इसके ऊपर जो बातें करते हैं ना जी हम इसको नबी समझते हैं या हम इसको फलां समझते हैं, उसको कहते हो भाई ये जो बकौल कहता है कि मेरे ऊपर फलां या मेरी ये फलां बात है या मेरा फलां अकीदा है, उसके ऊपर बात करो तो बात खत्म हो जाएगी। इससे लंबी इनके साथ डिस्कस होती नहीं, क्योंकि हमने बड़े मुनाजरे किए हैं, बड़ी बहसें की हैं इनके साथ। ये वो पानी में लस्सी में मदा नहीं पता पानी में मदा नहीं, वो वाली जो बात है ना वो वाली बात है। इनके साथ बहसें कराने के ऊपर करते जाओ, ये बहसें करते जाएंगे, इनको पता चलता है को नहीं, जो इनको बता दिया गया इन्होंने बस वही करते जाना है करते जाना है करते जाना है। अभी एक बात होती है ना, मतलब मैं कहूँ 2 + 2 4, तो हर किसी को पता है यार 4, लेकिन इन्होंने कहा नहीं ये 2 + 2 4 हुए कैसे, क्यों हुए, क्यों किसने किए, कब हुए, ये इस तरह की बातें करके बस लंबा तानी खींची चले जाते हैं। और इसके अंदर इनके कोई मतलब बात करने का कोई तरीका नहीं है इनके साथ। इनके ऊपर से बात करनी है तो इनका जो खत्म नबूवत का आपके इल्म ना वो भी होना चाहिए, लेकिन इनके साथ ये सिर्फ
वक्त ज़ाया करने के लिए और आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मौजू छेड़ते हैं, और इनके असल मौजू ये नहीं है। असल मौजू वही है जिसकी बिना पर मिर्ज़ा कादियानी ने हयात वफात मसीह का मसला छेड़ा था, वो उसका वही और इल्हाम था। ठीक है, तो उसके ऊपर बात करें तो बात इंशाल्लाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा कि ये एक सच्चा इंसान है या झूठा है। मैंने बस इतना ही कहना था। जी साहल कालू भाई, अगर ये वक्त बर्बाद हमारा करते हैं ना, तो ये हवाला जात इसीलिए तो शेयर किए जा रहे हैं, इसीलिए तो शेयर किए जा रहे हैं कि ये वक्त बर्बाद करें। हम अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय इनको हवाला दे रहे हैं, ये हवाला सुनेंगे और लोग खुद फैसला कर लेंगे। जो साइलेंट लिसनर होंगे वो खुद फैसला कर लेंगे कि भाई इधर वो हवाला जात दे रहा है, वो इधर अपनी भोंगियाँ मार रहा है, हम अपना वक्त बचाने के लिए हवाले पे हवाला इनको देते रहेंगे। ये इनकार करें, इनका इनकार करना ही हमारी जीत है, इनका किताबों से भागना ही हमारी जीत है। मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पर, मैं लंबी दूर की बड़ी बात नहीं करूँगा। जैसे आज हम मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का नाम लेते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, आगे से किसी मौलवी का नाम ले लेते हैं, या किसी दूसरे पीर का नाम ले लेते हैं, या किसी के बड़े मुजद्दिद का नाम ले लेते हैं। जी वो भी तो ऐसा था, उसने भी तो ऐसे किया। अगर इन्होंने अपने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की बात माननी होती तो ये इस तरह के काम करते ही ना, बल्कि ये उसका लेवल ही वहाँ पे रखते जिस लेवल पर ये समझते हैं, उसको नबी समझते हैं। ये तो उनको किसी पीर से मौलवी से मिलाने लग जाते हैं, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी ने खुद इनको कहा था कि मुझे किसी के ऊपर जो है ना वो क्यास ना किया करो, यानी मुझे किसी के साथ ना मिलाओ, ना किसी को मेरे साथ मिलाओ। अगर तो उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी की बात मानी हो तो ये काम करते नहीं। ये असल में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मानते हैं, उसकी नहीं मानते। समझ आई? और आप ये बात सही है कि आप लोग जो हवाला जात देते हो, ठीक है, जो साइलेंट लिसनर होते हैं, जो जिन्होंने तहकीक करनी होती है वो सुनते हैं और उसकी तहकीक करते हैं और सच समझ भी लेते हैं और जान भी लेते हैं। लेकिन जब ये आते हैं ना कि जी हमारे साथ बहस करो, जी फलां हयात मसीह साबित करो, जी ख़त्म नबूवत साबित करो, जुराए नबूवत साबित करो, तब इनका मकसद सिर्फ यही कि होता है कि किसी तरह से मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी का जो खुद का है ना, खुद का उसका जो करैक्टर है, उसको जो है ना वो छुपाया जा सके इन बातों के अंदर। बस ठीक है, कोई नहीं, हम तो कहते हैं कि हमें अपनी लाइव ब्रॉड पर लो, जिस मर्जी मौजू पर बात करना चाहते हो करो, कोई मसला नहीं है, हम किताबें खोल लेंगे। ये किरदार पर बात ना भी करें, सिंपल ख़त्म नबूवत के ऊपर, हयात ईसा वफ़ात ईसा के ऊपर ही बात कर लें, तो बस किताबें खोलने की देर है, ये भाग जाएंगे। इनके नज़दीक गाली या किताब खोलना। सारानाज कहना कुछ कहना चाह रही थी सारानाज। जी कालू भाई। शाहजी जानते हैं, तकरीबन हम लोगों ने तकरीबन 6-7 साल इनके साथ जो है ना वो डिबेट्स की हैं, मुनाजरे किए हैं, सब कुछ किया है। ठीक है, इनका एक ही है, हमने तो यही नतीजा अखज़ किया है कि ये मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी को मानते हैं लेकिन उसकी नहीं मानते। इतना हमने नतीजा अखज़ किया बस। जी बिल्कुल ठीक हो गया। मैं हवाला जात पढ़ रहा था तो सारानाज बहना कुछ कहना चाह रही थी। जी सारानाज बहना, आप कुछ कहना चाह रही थी? आप जी आप पढ़िए, हवाले में बात करती हूँ, आप पढ़ लें पहले। बस मैं एक छोटी सी बात करूंगी कि बड़ी प्यारी और बड़ी इल्मी बात हो रही है, और सबसे जो हमारा इस्लाम का अरकान है, जैसे बुनियाद बेसिक पिलर है, वो है तौहीद, कि खुदा ताला पे ईमान। और किसी भी चीज़ का मंशूर जो है, अगर आप पढ़ें तो आप उसका बेसिक जब पढ़ें तो आपको समझ आती है कि मतलब उसका बुनियाद क्या है। तो खुदा ताला ने खुद जो है सूरह नहल में और कुरान पाक में मना कर दिया है कि मेरी मिसाल यानी अल्लाह की मिसाल नहीं दे सकता कोई भी। तो मिर्ज़ा कादियानी ने जैसा कि खुदा ताला को इतने हाथ हैं, इतने पैर हैं और इस तरह तेंदुए की शक्ल में है, तो देखिए ये एक खुदा ताला की वहदानियत और खुदा ताला के हुक्म की बेसिक जो है वही कितनी गलत है। और फिर एक खुदा जो है जिंदा खा जाने वाली आग है। तो देखें, ये हम खुदा को नूर समावात फिल अर्द मानते हैं, कि हम खुदा को आसमान और ज़मीन का नूर मानते हैं। तो ये मिर्ज़ा कादियानी के मतलब किस किस चीज़ पे ये पर्दा डालेंगे, और बुनियादी जो पिलर है उसके ऊपर इतना बड़ा अटैक है और इतनी गंदी तहरीरात हैं। हाँ जी, करिए बात। अल्लाह अकबर। अच्छा, यहाँ पर एक हवाला मैं देना चाह रहा हूँ, हवाला नोट करिएगा,
بڑا قیمتی حوالہ ہے، روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ 660، جلد 22 ہے، صفحہ 660۔ مرزا قادیانی کہتا ہے عربی کے اندر کہ فَمِن سُوءِ الْأَدَبِ أَن يُقَالَ إِنَّ عِیسیٰ مَا مَاتَ وَإِنْ هُوَ إِلَّا شِرْكٌ عظیم، کہ یہ بہت سوء ادب میں سے ہے کہ کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، یہ تو بہت بڑا شرک ہے کہ جو یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے قادیانیوں سے کہ مرزا قادیانی 52 سال تک 52 ایئر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتا رہا کہ ماں ماتا عیسیٰ، ماں ماتا عیسیٰ، کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، ماں ماتا عیسیٰ کا وہ قائل رہا 52 سال تک، تو آیا وہ شرک عظیم کرتا رہا کہ نہیں کرتا رہا؟ جبکہ قرآن پاک کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ لقمان آیت نمبر 13 کے اندر، اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی اور نصیحت کی تھی۔ تو شرک سے انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں وہ باز رہتے ہیں، شرک کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ خود مرزا قادیانی نے کئی جگہ یہ بات کی ہے کہ نبی کا کام ہوتا ہے شرک کو ختم کرنا، نہ کہ نبی کی زندگی ایسی ہو کہ وہ 52 سال تک شرک کرتا رہا ہو۔ یہ قادیانیوں سے ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ مرزا قادیانی ماں ماتا عیسیٰ کہہ کے 52 سال تک وہ شرک کرتا رہا کہ نہیں کرتا رہا؟ ہمارے چیلنج کو قبول کرو قادیانیوں۔ 1 کروڑ روپے کے انعام کا ہم نے اعلان کیا ہے کہ جو وفات مسیح کو قرآن سے کوئی قادیانی ثابت کر دے، ایک آیت، صرف ایک آیت، 1 کروڑ روپیہ لے لو، آؤ نکلو میدان میں، سامنے آؤ، اگر تمہارے اندر کوئی رتی برابر بھی کوئی صداقت ہے تو، اور مرزا قادیانی کو اس شرک عظیم سے بچاؤ، مشرک ہونے سے بچا لو۔ ہم تمہیں دلائل دے رہے ہیں اور تمہارے گھر کی باتیں بتا رہے ہیں، اور یہ وہی کتابیں ہیں کہ جس کے بارے مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ براہین احمدیہ فیضان الہی کے ماتحت لکھی گئی ہے، اور جناب یہ جو براہین احمدیہ ہے یہ دین اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، اور براہین احمدیہ جو ہے یہ راکم نے مامور من اللہ اور ملہم من اللہ ہو کے لکھی ہے۔ یہ تمہاری کتابوں سے ہم ثابت کر رہے ہیں، اور تمہاری کتابوں کا عالم یہ ہے کہ انوار العلوم جلد 5 صفحہ 560 کے اوپر پورا صفحہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور پڑھنے والے کے دل کے اندر انوار اور تجلیات پھوٹتی ہیں، اور معرفت کے دریا جناب ایسے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو مرزا قادیانی کی کتابیں ہیں یہ قرآن کی تفسیریں ہیں، قرآن کی تفسیریں ہیں، تو تمہاری کتابوں کے اندر ہی سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ قادیانیوں اس کا جواب دو، ان قرآن کی تفسیروں کے اندر سے بتاؤ ذرا کہ مرزا قادیانی کچھ اور کہہ رہا ہے، تم کچھ اور کہہ رہے ہو۔ مرزا قادیانی جھوٹا ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو؟ کوئی یہ فیصلہ تو کرو کم از کم۔ براڈ ہماری کافی طویل ہو گئی ہے جی، ساحل کالو بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی ان کے نزدیک مرزا قادیانی جھوٹا، یہ سچے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ مرزا نے کرنی ہوتی ہے 1 طویل، انہوں نے 1 طویل کی کرنی ہوتی ہے 12 طویلیں۔ بھائی مرزا جھوٹا ہے، یہ سچے ہیں۔ ہاں یہی بات ہے۔ تو بہرحال براڈ ہماری کافی طویل ہو گئی ہے، تقریباً 1.25 گھنٹے کی براڈ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ پھر نئی براڈ کے اوپر ملتے ہیں،
उस वक्त तक के लिए आजज को और आजज की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, और हमारे तमाम अहबाब को आप लोग फॉलो कर लीजिए। ये हमारी सारी टीम है जो अभी आपको नज़र आ रही है। तो ये ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन हैं, ख़त्म नबूवत फ़ोरम के मुजाहिदीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी ब्राडें होती रहती हैं, तो जब भी हम किसी ब्राड पे हों तो आपको पता चल जाएगा, तो आप लोग लाजमी शिरकत किया करें। हमारा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स, उसको लाजमी तौर पे आप सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मुफ्ती मुबशर शाह ऑफिशियल है, फितना बेनकाब है, कादियानी हकायक है, कादियानी मुनाजरा है, और दीगर बहुत से चैनल्स हैं। लेकिन ऑफिशियल चैनल एक जो बड़ा वाला है वो अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और इसकी मुकम्मल रिकॉर्डिंग आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो इजाज़त दीजिए जी, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।